ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਸਮਾਜ, ਨੀਤੀ ਔਰ ਜੋਤਿਸ਼ ਜਨਮ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਾਜ ਤੇ ਨੀਤੀ ਜਨਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਜੋਤਿਸ਼ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਨਮ ਮੰਨ ਕੇ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਗਹਿਰਾਈਆਂ 'ਚ ਉਤਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਆਤਮਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤਲ ਦੀ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਜਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਕਥਾ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜੀਵਨ ਉਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਜਦ ਗਰਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਜਨਮ ਕਥਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੱਖ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਵੱਖ, ਫਿਰ ਘਰੇਲੂ ਮਾਹੌਲ ਵੱਖ, ਸੰਸਕਾਰ ਵੱਖ, ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ। ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਣ ਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਬਚਪਨਾ ਕੁਛ ਵੱਖ ਕਥਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਦੇ 'ਚ ਗਤੀਮਾਨ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਨਮ ਕਥਾ ਸਭ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੈ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਮੂਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਜੈਸਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਕਥਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੀ ਭਿੰਨਤਾ, ਇਤਨਾ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਆਚਰਣ, ਇਤਨੇ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਇਤਨੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਮ ਕਥਾ ਇੱਕ। ਹਾਂ, ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਨਮ ਕਥਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਨਮ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਰ ਦੀ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ, ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਹੈ। ਵਾਸਤਵਿਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭੂਤ, ਭਵਿਸ਼ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ, ਸਭ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ 'ਚ ਬੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯੁੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਸੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਮਝੀਏ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਪਹਿਰੇ। ਦਿਨ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ 4 ਪਹਿਰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਖੰਡ ਵੀ 4 ਨੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਵੀ 4 ਨੇ। ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ, ਜਵਾਨੀ, ਬਚਪਨਾ ਤੇ ਗਰਭ ਕਾਲ। ਅਕਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਮ ਕਥਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਕਥਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਹੈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਵਾਸ।
प्रभु दा हुकम, प्रभु दी बनाई हुई मर्यादा नियमावली दे मुताबिक तेरा गर्भ दे जो प्रवेश होया, बस यही जन्म है। गर्भ केड़ा मिलिया, जिस तरह के पूर्वले संस्कार सन, जिस तरह का सूक्ष्म ढांचा सी, हर तरह के सूक्ष्म शरीर खला दे घूम रहे ने और हर वक्त गर्भ धारण की सहूलत भी मौजूद है। हर वक्त गर्भ दे धारण हो सके ये सूक्ष्म शरीर अवसर मौजूद ने, उपलब्ध ने पृथ्वी दे उत्ते। पर जैसे पानी निवाण की तरफ जाता है, सूक्ष्म शरीर की निवाण की है, जैसे उसके संस्कार ने ते जिस गर्भ दे उसने प्रवेश करना है, वो मां भी उसी संस्कार की मलकीयत रखती होवे, हू बहु उसदे कोल उही संस्कार होवन। ये कहावत बड़ी सोहनी है कि ऋषियां दे घर ऋषि पैदा होंदे ने, संतां दे घर संत पैदा होंदे ने, अक्सर चोरां दे घर चोर पैदा होंदे ने। एक चोर मां ने एक चोर सूक्ष्म शरीर लई जीवन उसनों प्रदान हो सके, मिल सके, सहायता कीती है, मदद कीती है। इंज कह लो, एक चोर दी दूसरे चोर ने मदद कीती है। एक संत है, पवित्र सूक्ष्म ढांचा है, दार्शनिक है, फिलोसफर है, वो जगत विच आ सके, जीवन पा सके। कोई दार्शनिक, कोई फिलोसफर, कोई संत, कोई पावन पवित्र मां उस लई सहारा बनती है। एवें नहीं बाबे फरीद ने कह दिता, तिन धन जने दी माओ आए सफल से। धनता दे योग है ओ मां, पूजन योग दे है ओ मां, सत्कारण योग है ओ मां, जिस दे राही ओ आया है जगत दे, जिसदा जीवन धन धन है, जिसदा जीवन दूजियां लई प्रेरणा दा बाइस बनिया है, जिसदा जीवन वाकई अंधेरी रात दे एक जलदा होया दीवा है, जिस तो मुसाफिर रोशनी ले रहे ने और मदद जो है ले रहे हैं। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, जिस तरह का हुक्म, जिस तरह का सूक्ष्म शरीर, जिस तरह के उसके संस्कार सन, उस तरह का उसने गर्भ धारण कर लिया। खला सूक्ष्म शरीरां नाल भरे होया है और गर्भ धारण हो सके इस तरह की सहूलियत अठे पैर पृथ्वी ते मौजूद है। इंज कह लो, गर्भ की अवस्था नाल पृथ्वी भरी पई है, सूक्ष्म शरीरां नाल खला भरिया पिया है, ब्रह्मंड भरिया पिया है। इस तरीके नाल ये जीवन चल रहा है, जन्म चल रहा है और बिना रुके चल रहा है और बड़ी गति दे नाल चल रहा है। लखां मनुखी बच्चे रोज जीवन पा रहे हैं और लखां सूक्ष्म ढांचे रोज गर्भ दे प्रवेश कर रहे हैं, रोज उन्होंने जन्म मिल रहा है। दो तरह के ढांचे खला दे लंबे समय तक रुके रहते हैं। एक ते ओ जो सूक्ष्म ढांचा अति पवित्र है, अति पवित्र है, बड़ी पवित्रता दे नाल उसने पिछला जीवन व्यतीत किया होवे, पर मोक्ष गति प्राप्त ना हो सकी होवे, जीवन ने साथ ना दिता होवे, विचकार ही अंत हो गया होवे, साधना सफल ना हुई होवे, तो ऐसा जोड़ा सूक्ष्म ढांचा है वो लंबी उड़ीक दे च रहिंदा है, क्योंकि कोई बहुत ही पावन मां चाहिदी है उन्होंने जगत दे च आउण वास्ते। उहदे जन्म लई कोई बड़ा पवित्र गर्भ चाहिदा है। दूसरा खला दे च वो सूक्ष्म शरीर लंबे समय तक रहिंदा है जो अत्यंत मलीन, गंदा, गलाजत नाल भरे होया, कुदाया, कठोर, जुल्मत नाल भरे होया, सब औगण ही औगण। इनू भी लंबी उड़ीक करनी पैंदी है। इनू भी
जन्म प्राप्त करन लई, गर्भ प्राप्त करन लई कोई डायण मां, कोई दुष्ट मां, कोई कसायण मां, कोई कठोर मां चाहिदी है। वाकई कुछ ऐसे भी बूटे ने जो बंजर धरतियां दे 'ਚ ही पनपदे ने। ऐसियां मावां ऐसे सूक्ष्म शरीर ਲਈ सहारा ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, पर जगत ਦੇ 'ਚ हमेशा आम पद्धर दियां मावां ही मौजूद ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ऐसी मां जो प्रहलाद ਨੂੰ जन्म दे सके, ध्रुव ਨੂੰ जन्म दे सके, राम ਨੂੰ जन्म दे सके, कृष्ण ਨੂੰ जन्म दे सके। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिस दे राही आ सकन, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिस दे राही जीवन पा सकन, संसार दे उत्ते इस तरह दियां मावां हर वक्त नहीं आउंदियां, कदी 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 कदी। पर संसार दे हर वक्त ऐसियां मावां भी नहीं जिहदे राही हलाकू जन्म ले सके, चंगेज खां जन्म ले सके, दुर्योधन जन्म ले सके, या फिर कंस जन्म ले सके, हरनाकश जन्म ले सके। इहदे लई कोई बहुत दुष्ट मां चाहिदी है, कोई बड़ी कठोर हिरदे दी मां चाहिदी है। एक इस तरह दे सूक्ष्म ढांचे नूं जन्म देण लई। इस वास्ते अगर पुत्र भैड़ा है, माड़ा है, तो देखे उंगलां मां ते उठ जांदियां ने। लोकी कह देंदे ने लानत है तेरी जननी नूं, फिटकार है तेरी मां नूं। क्यों? बुरा कीता है पुत्र ने, फिटकार मां नूं क्यों है? बुराई नूं जन्म देण दे 'ਚ ਉਹ सहायक होई है, मददगार होई है। ये बुरी चेतना जगत दे 'ਚ आ सके, जीवन पा सके, उसने मदद कीती है। वो द्वार बनी है, बुराई संसार दे 'ਚ आ सके, ये मां एक रस्ता बनी है, एक द्वार बनी है। अगर संसार दे 'ਚ गाहे बगाहे या चेत अचेत अवस्था दे 'ਚ ये जो उंगलां मां ते उठ जांदियां ने, एवें नहीं उठदियां, और अज तक उठ रही ने। जद भी किसी भेड़े बच्चे नूं देखीदा है, अनर्थ करदियां होया बच्चे नूं देखीदा है, और सुते सिद्ध सुभाविक रसना तो निकल जाता है, भैड़ी है तेरी मां, लानत है तेरी जननी ते। पर कोई बच्चा महान है, पावन है, पवित्र है, चंगे ख्यालां दा मालिक है, तो उसनूं वेख के एकदम जबान तो ये शब्द निकलते ने, धन है तेरी मां, धन है तेरी जननी। शाबाश है उस मां नूं जिसने तैनू जन्म दिता। चंगियाई कीती बच्चे ने, शुभ कर्म कर रहा बच्चा, चंगे विचार बच्चे दे ने, धन धन कहलाई जा रही है मां, पूजी जा रही है मां। इवें नहीं, इस दे बहुत वड्डा रहस है। संत बाबा अतर सिंह उन्हां दी जीवन दी एक कथा है कि अद्धी रात नूं उन्होंने अपने माता दे कदमां दे उत्ते सिर रखिया, और काफी लंबे समय तक सिर चुकिया नहीं। बिरध मां दी अख खुल गई। की देखदी है कि सारे भगत गुणी जन जेदे कदमां ते सिर रखदे ने, वो अपना सिर मेरे कदमां ते रखी बैठा है। रोंदी हुई मां कहन लगी, बच्चा की हो गया अज तैनू? अद्धी रात नूं उठिया, खैर ते है, सुख ते है, तू अपना पवित्र मत्था मेरे कदमां ते रखे। हाथ जोड़ के बाबा अतर सिंह कह रहे ने, तेरे राही मैं संसार ते आया, तू द्वार ना बनदी ते निरंकार दे मिलन दा मैनू अवसर भी नहीं मिलना सी। तू धन है। दिन दी तारीकी दे लोकी दिन दे चानने च, दिन दे प्रकाश दे लोकी मेरे चरनां ते मत्था टेकदे ने। रात दी तारीकी दे मैं अपना सिर तेरे कदमां ते रखिया करांगा, ताकि रोज धन्यवाद कर सकां, रोज शुकराना कर सकां, रोज मत्था टेक सकां। तो नेक पुरुषां नूं देख के मां नूं जो धन धन आखिया जांदा है, एवें नहीं, मां दी अपनी महानता है।
ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਐ ਜੀ ਤੇਰਾ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣ ਜਾ ਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਵਾਸ, ਉਰਧ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣ ਜਾ ਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਲਟਾ ਸੀ, ਸਿਰ ਥਲੇ ਪੈਰ ਉੱਪਰੇ, ਵਸੰਦੜੋ ਕੋਹਤੜੇ ਥਾਏ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਧੜੀ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਿਓ, ਉਧਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰ ਤੇਰਾ ਉਲਟਾ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਸੀ, ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਸਨ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਉਧਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਏ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਸੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ, ਸਕੂਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ तमाम ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੇ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਨਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੰਨਿਆ। ਬਚਪਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜਵਾਨੀ, ਨਾ ਬ੍ਰਿਧ ਅਵਸਥਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਹਿਲਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਇੰਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤ ਹੈ, ਮਰਨ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੈਂਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ, ਮਰਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਪੂਰਨ ਸਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਜਿਸ ਦਾ ਮਰਨਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਜਨਮ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਗਰਭ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਭ ਕਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਅਭਿਆਸੀ ਭੋਰਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗੁਫਾ ਮਾਂ ਦਾ ਗਰਭ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਗੁਫਾ, ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਗਰਭ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸ ਗਰਭ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੇ ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਥਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਰਭ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਫਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਰਭ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਫਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਭਿਆਸੀ ਲੋਕ ਕਰੀਬਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੋਦ ਮਾਂ ਦਾ ਗਰਭ ਹੈ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੁਫਾ ਦਰਅਸਲ ਮਾਂ ਦਾ ਗਰਭ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਰਭਮਈ ਅਵਸਥਾ ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਏ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ तो शायद मैं समाधि लीन हो सका, शायद मैं समाधि स्थित हो सका। ये गल्लां सच दे उत्ते मबनी ने, हकीकत दे उत्ते मबनी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, पहले पहरे रहन के वण जा रिया मित्रा, हुक्म पाया गरबास, उर्ध तप अंतर करे वण जा रिया मित्रा, कसम सेती अरदास। भावें शरीर उल्टा सी, ध्यान सिद्धा सी, अरदास कर रहा सी, प्रार्थना कर रहा सी प्रभु दे अगों, समाधि लीन सी। कहंदे ने मन खिंडदा है कुछ वेख के, मन खिंडदा है कुछ सुन के, मन खिंडदा है कुछ स्पर्श करके। इंद्रियां जैसे जैसे स्पर्श करदियां ने, मन दा उतना ही ज्यादा खिंडाव हुंदा है। हथ नेड़ों स्पर्श कर सकदा है, ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੂਰੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੂਪ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। तो जिथे दृष्टि रुकी, अख ने स्पर्श किया,
किसे रूप नो। कन ने कोई दूरों धुनी सुनी तो कन ने स्पर्श कीता आवाज नो। कन दी जितने तक पहुंच है और अख जितनी दूर तो स्पर्श कर सकती है, हथ इतना दूर तक स्पर्श नहीं कर सकता। यदि तो मामूली जिया विथ है और छुएगा स्पर्श करेगा, अख बड़ी दूर तक जाती है और दूरों छूंदी है। समाधि लीन पुरुष अपने इंद्रियां नूं रोक लेंदा है। ना उसकी अख संसार नूं वेखदी है, ना कन संसार नूं सुनदे ने, ना रसना संसारी बोल बोलदी है, ना संसार नूं चखदी है, ना खलड़ी संसार नूं स्पर्श करदी है, ना नासका संसार नूं सूंघदी है। कहते ने बाहर गुफा दे समाधि च बैठा होया मनुख ऐसा है जैसे गर्भ काल दे पिया होया बच्चा। ये जन्म अवस्था है। जीवन भर मनुख जन्म काल लभ रहा अपना। अगर एक बुढ़ा भी जन्म दिन मना रहा है, ये गल वखरी है कि वह जन्म उसनूं मनदे ने, जिस दिन गर्भ तो बाहर आंदे ने नहीं उसकी कशिश नहीं है, वो तो जीवन कोई जीवन नहीं है। बचपना की जीवन है, मुथाजी का जीवन है, पर आश्रित जीवन है। बहुत मुथाज है। पैर हैं चल नहीं सकता, हाथ हैगे ने कुछ कर नहीं सकता, जबान है बोल नहीं सकता। ये सारी दी सारी मुथाजी है। मां ना होवे, प्यो ना होवे, भैणा ना होवन, भरा ना होवन, दूसरा ना होवे, इहदी परवरिश ही नहीं हो सकती। इस जन्म दी इतनी चाहत इतनी तड़प नहीं हो सकती कि जीवन भर बंदा जन्मदिन मनावे। ये जन्म नहीं है। जन्म है जिस दिन गर्भ धारण किया, ये उसे नूं मनांदा है, उसे नूं याद करदा है। क्यों? वो आनंदमई सी, वो खेड़े ते खुशियां दी गल सी। आम जगत नूं पता नहीं। बच्चा गर्भ तो बाहर आया तो ढोल वजदे ने, बधाइयां, लड्डू। नहीं, लड्डू उस दिन ही वंडने चाहिए ने जिस दिन मां नूं महसूस होवे कि बच्चा गर्भ विच प्रवेश कर गया, जन्म हो गया उसका, और वो बच्चा खुशी दे है, बच्चा खेड़े दे है। घर दे लड्डू वंडने चाहिए ने। ਉਹੀ ਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ ਮੰਗਲ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਮੰਗਲ ਧੁਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਜੀਵੇ ਔਰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਵੇ, ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸੀ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਕਾਲ ਦੇ ਚ ਹੈ, घर ਦੇ सत्संग चलना चाहिए, कथा कीर्तन चलनी चाहिए, आनंद मंगल धुनियां गूंजनियां चाहिए ने, मां नूं प्रभु दे गीत गाने चाहिए ने। घर दा वातावरण ऐसा खुशियां दा बनाना चाहिए है कि ये जो जन्म दे बच्चा आया है ये जीवन भर जगत नूं खुशियां दे सके। इत्थे मां नूं रज रज के खुशियां देईए ते मां रज रज के उस बच्चे दी झोली च खुशियां पा सके, ताकि फिर जद इस बच्चे नूं जीवन प्राप्त होवे, बचपना जवानी बुढ़ेपा प्राप्त होवे, ते इस संसार नूं खुशियां वंड सके, आनंद दे सके। पर अज तक संसार दे इस ढंग दी प्रक्रिया प्रचलित नहीं हो सकी। उसे नूं जन्म मनदे ने। जब गर्भ तो बच्चा बाहर आ गया, हुण कुछ भी नहीं होना। हुण ते जैसी ये संस्कार लैके आ गया, जो कुछ इसनूं मां तो मिल चुके है, हुण ते जीवन उसे चाल नाल चलेगा। पर पहले कुछ कीता जा सकदा सी, पहले कुछ सुधार कीता जा सकदा सी। पहले इसकी जीवन यात्रा नूं सही जो है सेध दित्ती जा सकदी सी। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, उत्थे समाधि लीन सी। क्यों? कि इंद्रे रुके हुए सन, मन टिके होया सी। ध्यान गमन करदा है इंद्रियां दे राही। कुछ देखण नूं नहीं है, ध्यान किथे जावे। कुछ सुनन नूं ही नहीं है, ध्यान किथे जावे। और कुछ चखण नूं नहीं है तो रसना की मंगे। कुछ स्पर्श करन नूं नहीं है, कुछ सूंघण नूं ही नहीं है। ये ठीक है कि ये समाधि प्राकृतिक है, प्रभु दी देन है, प्रभु दी किरपा है। लेकिन बाद दे जीवन काल दे अगर साधना करके भी कोई संत समाधि लीन होया,
ते फिर उसने यही आख्या, तेरी कृपा, तेरी बख्शिश, तेरी रहमत। अगर प्रथम जन्म काल दी समाधि तेरी किरिया सी, तेरी कृपा सी, तेरी बख्शिश सी, तेरी रहमत सी, तो जीवन काल दी यह समाधि भी तेरी बख्शिश है, तेरी रहमत है, तेरी कृपा है। वास्तविक ये तेरी ही मेहर है। ऐसा बार बार संतां दा कहना, ये अनुभव विच गल आ चुकी है। आखिर उस बच्चे ने मां दे गर्भ काल विच की मेहनत की है कि समाधि लीन होया है। ये ते सुते सिद्ध उसनूं प्राप्त है। इधर उसनूं जन्म मिलिया, इधर इसने गर्भ दे प्रवेश किया, समाधि दे ही प्रवेश किया, जन्म तो समाधि मिली। अगर सारा जीवन समाधि लई तड़पदा है, एकाग्रता लई तड़पदा है, आनंद लई तड़पदा है, तो दरअसल ये इंज कह दईए जन्म लई तड़पदा है। ये गल वखरी है कि इनू फिर पुठे रूप विच मनाया जाता है, जन्मदिन मना के, जन्मदिन मना के। जद कौन दसे जन्मदिन ते समाधि दिन है। जन्मदिन ते ओ है जद गर्भ दे तू प्रवेश कीता सी ते तू एक योगी सी, तू एक संत सी, तू एक भगत सी। जितने बच्चे माता दे गर्भ दे ने अजे बाहर नहीं आए, अजे उन्होंने बचपना नसीब नहीं होया, ये सब संत ने। जीवन प्राप्त करके हो सकता है कोई दुष्ट होवे, कोई चंडाल होवे, कोई चोर होवे, कोई डकैत होवे, कोई झूठा होवे, कोई बेईमान होवे, कोई परोपकारी होवे, और कोई उग्गा राजनीतिक होवे, कोई उग्गा व्यापारी होवे, कोई दार्शनिक ते फिलासफर होवे। इस तरह वख वख होवन, लेकिन गर्भ दे ते सारे ही संत ने। भगत कबीर जी महाराज ते कहंदे ने, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंदे ते सब उत्पाती। गर्भ काल दे कोई जात पात भी नहीं, वरण भी नहीं, मुल्क भी नहीं। यकीन जानो जद भी कोई संत समाधि लीन होंदा है, सारा संसार उसका मुल्क होंदा है, उसदे मुल्क की कोई सीमा नहीं होंदी। सारा विश्व उसका मुल्क होंदा है, और वो जद भी मान करेगा सारे संसार ते मान करेगा। सारा संसार मेरा मुल्क है, ते जद सारा ब्रह्मंड मेरा मुल्क है, तो सारे जीव मेरे सखा ने, मेरे भाई बंद ने। और जे सारे उस एक तो आए ने, तो फिर सारियां दा प्यो भी एक है। एक पिता एक सके हम बारिक, तू मेरा गुरहाई। बड़ी सार्थक पंक्ति है। संत लई कोई वरण नहीं। अगर वरण भेख दे कोई जी रहा है, वो अजे संत नहीं। जात पात दे मान ते मनोत दे कोई जी रहा है, वो संत नहीं। देश दा मान, कौम दा मान, प्रांत दा मान, ये भी फोके मान ने। संत करदा है प्रभु ते मान, संत करदा है विश्व ते मान। वो जद भी कल्याण चाहता है, विश्व दा कल्याण चाहता है, सिर्फ एक सीमा तक किसी खिते दा नहीं। वो जद भी भला मंगदा है, सारे विश्व दा भला मंगदा है। गुरु नानक दी रसना दे बोल जो बार बार निकलते सन, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। तो गर्भवास दे जात पात नहीं है, वरण भेख नहीं है, कुल जात नहीं है, चक्र चेन नहीं है, नाम वरण नहीं है, कुछ भी नहीं है। अहंकार पैदा हो सके ऐसा कुछ भी नहीं। अहंकार पैदा होता है वरण तो, जात तो, कुल तो, धन संपदा तो, मान वडियाई तो, पूजा प्रतिष्ठा तो, ये सब कुछ नहीं है। सुते सिर निरंकारमय जीवन है, अहंकार ते है ही नहीं। इधर जीवन प्राप्त होया ते जीवन अहंकार आश्रित हो जाता है। फिर जीवन की सारी गड्डी अहंकार दे आसरे ते चलती है। फिर इस गड्डी नूं खिंचदा है अहंकार, ते अहंकार की जिहड़ी यात्रा है वो ते तबाहियां की तरफ है। अहंकार कित्थे ले जाएगा? बार बार जन्म ते मरण दे विच। अहंकार कित्थे ले जाएगा? बंधना दे विच, दुख ते संताप दे विच। गर्भ काल दा जो बच्चा है ये निरंकार आश्रित है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने कि हुक्म पया गरबास,
ਉਰਧ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣ ਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਆਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਕ ਗਾਥਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅਭਿਮਨੂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਭਿਮਨੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ, ਫਿਲਸਫਾ, ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਮਾਂ ਉਸ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇ, ਮਾਂ ਉਸ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ। तो कोई भी महान चित्रकार बन सकता है, दार्शनिक बन सकता है, फिलोसफर बन सकता है, भगत बन सकता है, संत बन सकता है, पर मुनस्सर है मां दे उत्ते, सहारा मां दा चाहिदा है। यही कारण है कि बाद विच इस तरह के जो महान मनुख होए उन्होंने जीवन भर मां दे गीत गाए और आख्या, ऐ मां तू धन है, तेरे सहारे नाल असी महान होए, तेरे सहारे नाल असी उत्तम होए, तेरे सहारे नाल असी इन्हां बुलंदियां नूं छोया। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, पहले पहरे रहण के वण जारिया मित्रा, हुक्म पया गरबास, उर्ध तप अंतर करे वण जारिया मित्रा, खसम सेती अरदास, खसम सेती अरदास वखाणे, उर्ध ध्यान लिव लागा, नाम रजाद आया कल भीतर, बहुड़ जासी नांगा। गर्भ काल विच बच्चा नंगा है, बस्तर नहीं, कपड़ा नहीं। कपड़े साडी इजाद ने, प्रभु दी नहीं। प्रभु ने जन्म नंगा ही दिता। और असी देखते हैं कि गर्भ का यह नंगा बच्चा भी नंगा प्रतीत नहीं होता। ये तो इंज लगता है जैसे फुल, ते फुल्लां नूं ढकण की कोई लोड़ है नहीं, गंदगी नूं ढकण की लोड़ है। गर्भ काल तो जैसे बच्चा बाहर आया गंदा होया, जबकि आम सोचनी ये है, साइंस की सोचनी ये है, ये गर्भ विच गंदा सी, हुण बाहर आया है, इसनूं साफ करो, सुथरा करो, पवित्र करो। जबकि धर्म की दृष्टि यह कहती है, ये गर्भ विच पवित्र से बाहर आके अपवित्र हो गया है, इनू ढकण की लोड़ पै गई है, कपड़ियां की लोड़ पै गई है। ये अंदर ते पवित्र सी, ये बाहर आके अपवित्र हो गया है। हुण बस्तर चाहिए ने। बहुत मुताला करके वेखो, किसी भी फुल नू ढकण की लोड़ नहीं। गुलिस्तान, चमनिस्तान, ये खिड़े हुए फुल ये तो नंगे ही चंगे ने, पर जिहड़ी गंदगी है ये ढकी हुई चंगी है, ये कजी हुई चंगी है। जन्म सारियां दा पवित्र सी, नंगा है। जीवन आनंद लोकां दा अपवित्र है, ढके होया है, कजे होया है। इस वास्ते असीं ये भी देखते हैं कि कदी कदी जद कोई उस गर्भमई अवस्था नूं प्राप्त हो जाता है, उन्होंने अपने वस्त्रां की परवाह नहीं रहिंदी, उन्होंने अपने कपड़ियां की परवाह नहीं रहिंदी। कोई गल नहीं, एक कुपीन ही सही, कोई गल नहीं, तन ते एक मामूली जिहा चोला ही सही, कई दफा यह भी ना सही। सरमद जैसा इस्लामी सूफी फकीर भी यह कहता है कि पेशान दे लिबास हर किरा ऐबे दीद, बेऐबा रा लिबास अरियानी दा। आप कहते ने जो बेऐब ने उन्हां दा लिबास की है नग्नता, और जो ऐब वाले ने उन्हां नूं लिबास की लोड़ है, कपड़ियां नूं लोड़ है। क्रोध है, लोभ है, मोह है, अंकार है, तृष्णा है, वासना है। चलो पहले तो इसनूं कपड़ियां नाल ढकी है, फिर होर अनेकां तौर तरीके ने ढकण दे, पहले तो कपड़ियां नाल ढकी है। परमात्मा ने जन्म दिता, नंगा ही जन्म दिता। गर्भ दे बच्चा नंगा ही है। जीवन प्राप्त होंदियां ही ढकना पैंदा है, कजना पैंदा है। ये नंगा क्यों है? ये ते फुल है, ये ते गुलाब दा फुल है, ये ते चंबेली दा फुल है ये फुल। ये गल वखरी, कोई वख वख हो सकता है,
कोई गेंदे दा फुल हो सकता है, कोई कमल दा फुल हो सकता है, कोई गुलाब दा फुल हो सकता है, कोई चंबेली दा फुल हो सकता है। हैं सारे फुल ते किसी भी फुल नूं ढकण दी लोड़ नहीं। सारे ही फुल खूबसूरत ने, सारे ही फुल जो है सुगंधित ने। शायद यही कारण है कि जीवन भर मनुख दे प्राणां दे च प्यास रहिंदी है कि मैं प्रभु दे चरनां दे फुल अर्पण करा। तमाम वड्डे वड्डे मंदिर, खानकावां, गुरुद्वारे जिथे हजारां मन फुल रोज चढ़ते ने, दिन भर यात्री फुल चढ़ा रहे ने, दिन भर भगत जन श्रद्धालु लोग फुल भेट पे करते ने। दरअसल ये भी उस अपने पुराने पन नूं याद करना है कि हे प्रभु, जद असी फुल दी तरह सी तेरे चरनां दे उदों असी भेट सी, जद असी फुल दी तरह सी उदों असी तेरे हत्थां च सी, जदों असी फुल दी तरह सी उदों असी तेरे गले दा शिंगार सी, जदों असी फुल दी तरह सी उदों असी तेरी गोद दे सी, असी समाधि दे सी। हे प्रभु, तू जन्म दिता फुल दी तरह, पर जैसे जीवन मिलिया फुल फुल ना रहा, जीवन गंदगी दा ढेर हो गया ते जीवन भर मनुख बनस्पति दे फुल तोड़ तोड़ के प्रभु नूं अर्पण करदा रहा, भेंट करदा रहा। कबीर जी इस भेंटां नाल कोई पूर्ण तौर ते सहमत भी नहीं। आप कहंदे ने पाती तोरे मालनी, पाती पाती जियो, जिस पाहन को पाती तोरे सो पाहन निर्जीहो, भूली मालनी है एहो सतगुर जागता है देहो। ऐ मालन तू बिल्कुल भुली है। फुल ते चढ़े हुए ने प्रभु नूं, ये बूटियां नाल लगे हुए फुल तेनू ऐसा नहीं जो है प्रतीत होंदा कि ईश्वर दे चरनां दे अर्पित ने, समर्पित ने, लीन ने। तू तोड़ के प्रभु चरनां तो अलग कीता है। ये फुल नहीं तोड़े, फुल्लां नूं तू प्रभु चरनां तो वख कीता है। मैं इस क्रिया नाल सहमत नहीं होवांगा। मैं फुल उत्थे नहीं अर्पण करांगा जिथे तू अर्पण करन जा रही है, उस नाल ते ज्यादा जिंद जान है फुल दे विच। मालन भूली जग भुलाना, हम भुलाने ना है। सारा जगत भुलिया पे, ये मालन भी भुली पई है, सोचदी है कि मैं ये फुल प्रभु दे चरनां च अर्पण होवां। कौन दसे, जिस दिन तू फुल दी तरह होवेंगा स्वयं, उस दिन प्रभु दे चरनां दे समर्पित होवेंगा, अर्पित होवेंगा। ये क्रिया ही मनुख भुल गया। तो जन्म काल ते फुल सी। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, भावें नंगा सी, भावें नगन सी, पर ध्यान मगन सी। नगन फिरत रंग एक के ओ शोभा पाए, पाट पटंबर बिरथया जै रच लो भाए। तरह तरह दे रेशमी ते कीमती कपड़ियां ने जे तेनू संसार नाल जोड़ देता है ते तुच्छ ने ए कपड़े, पर जे नगनता ने तेनू निरंकार नाल जोड़ देता है तो ये नगनता भी फुल दी तरह है, पावन है, पवित्र है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, उर्द ध्यान लिव लागा, नाम रजाद आया कल भीतर, बहोड़ जासी नांगा, जैसी कलम बुड़ी है मस्तक, तैसी जियड़े पास, कहो नानक प्राणी पहले पहरे, हुक्म पया गरवास। जिस तरह दी कलम मत्थे ते फिर गई, हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती। एक कलम इस तरह दी नहीं कि किसी वक्त चलदी होवे, किसी वक्त बंद हो गई होवे, बस एक तरह फिर गई, सारियां दे लेख लिखे गए। किस तरह? जैसे जैसे जीव कर्म करते हैं, नाल दे नाल संस्कार लिखे जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। और जिस तरह दे नाल ये संस्कारां दा ढांचा बनता जाता है, उस तरह के गर्भ पृथ्वी दे उत्ते उपलब्ध ने, उस तरह का गर्भ प्रवेश हो जाता है। गर्भ प्रवेश जन्म प्राप्ति है,
ਗਰਭ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਵੈਸੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਗਰਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਉੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਵਾਸ। ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਰ ਨਿਸ ਸੋਵਨਾ ਤੀਨੋਂ ਨਰਕ ਸਮਾਨ, ਭੋਜਨ ਕਰਨਾ ਪਤਤ ਘਰ ਰਜਬ ਘਾਟ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪ੍ਰਥਮ ਪਹਿਰ ਨਿਸ ਸੋਵਨਾ ਤੀਨੋਂ ਨਰਕ ਸਮਾਨ। ਪਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਪਾਪੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਵੇ ਉਸ ਘਾਟ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਦੇ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਕੀ ਸੀ? ਗਰਭ ਕਾਲ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਜੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਦਫਾ ਨੀਂਦ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਨੀਂਦ, ਤੇ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ ਸਮਾਧੀ। ਇਹ ਫਾਸਲੇ ਨੇ। ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 20-20 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, 21-21 ਘੰਟੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਸਮਾਧੀ ਨੀਂਦ ਬਣ ਗਈ। 2-4 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਗਰਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਜਾਗਰਤ ਬਣ ਗਈ। ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਨੀਂਦ ਲਈ ਤਰਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਮਾਧੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ, ਲੰਬਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਤੜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਲਈ, ਜੋ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਬ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਤੜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨੀਂਦ ਲਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਥਮ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਵਿਰਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਖਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਉੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਵਾਸ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਟਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਕਟਿਆ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ, ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ, ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਆਲਮਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਨਮ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਜੋਤਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੀ ਜਨਮ ਕੁੰਡਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਨਮ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜੀਵ ਨੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਨਮ ਕਥਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ 3 ਪਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੜਪ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪਿਆਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ 4 ਪਹਿਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਜਨਮ ਕਥਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲਿਖਣ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲਿਖਣ, 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲਿਖਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਵੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁਨਰੁਕਤ ਹੋਵੇ, ਔਰ 3-4 ਦਫਾ ਪੁਨਰੁਕਤ ਹੋਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਜਨਮ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ। ਤੇਰੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਦੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਜਨਮ ਕਥਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਉਦਮ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਕਥਾ
ਤੇ ਜਨਮ ਕਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਕਥਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਾਸ ਦੇ ਤੂੰ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਸੀ, ਆਨੰਦਮਈ ਸੀ, ਖੇੜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਕਥਾ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ।